السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وفہما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سن بے حد شکر و احسان، یم رب ذوالجلال نسبی اک ساتن یت بابرکت مجلس میں شریک سپدن توفیق عنایت کور۔ حمد و ثنا پتہ ٲسِن بے شمار درود و سلام برذات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور تہندس آلس تامت۔ پتمن کینٛہن دروسن مز ووت اسہِ ماہ سیامٕکۍ یِم زن احکام چھِ تمن متعلق ووت اسہِ پرن، سُے سلسلہٕ برونٛہہ پکناوان چھِ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان ہی ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت کی واضح دلیلوں پر مشتمل اور حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ پس تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے وہ اس ماہ کا روزہ ضرور ہی رکھے، اور جو مریض یا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں اتنے ہی دنوں روزہ رکھے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں نہ کہ دشواری، اور چاہتے ہیں کہ روزہ کی مقررہ تعداد پوری کر لو۔ نیز اللہ نے تم کو ہدایت عطا فرمائی ہے، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ ام آئے مبارکہ لفظی ترجم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمان، شہر رمضان، شہر یُس زن چھ شہرک معنی گو مہینہ، یعنی عربی لفظ شہرک معنی چھ مہینہ، اور عربی پاٹ ونن ایک ہلال سے دوسرے ہلال تک جتنی مدت ہوتی ہے اس کو شہر کہتے ہیں، یعنی ما بین الہلالین، دو ہلالوں کے درمیان، ایک ہلال طلوع ہونے سے دوسرے ہلال کے طلوع ہونے تک جتنی مدت بیچ میں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شہر یا مہینہ۔ پتمس زن درسس مز پوڑ اس اللہ تبارک و تعالیٰ ونیو ایام معدودات، یہ گنتی کے کچھ دن ہیں۔ بہرحال تم گنتی ہند دہ کم چھ، یم چھا محرمک دہ، یم چھا سفرک دہ، تمچ نشاندہی اللہ تعالیٰ فرمان کہ گنتی کے دن یہ تو ایک مہینہ ہے، شہر کا مطلب مہینہ، شہر رمضان، اور کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ۔ شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ، یعنی ایام معدودات جن کے بارے میں پچھلی آیت میں اشارہ ہوا ہے، تو یہ ایام معدودات اصل میں رمضان کے مہینے کے دن ہیں۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن نازل ہوا۔ ات آئے مبارکہ مز آمت امچ تفصیل بیان کرنے کی یم ایام معدودات کم چھ، اور دوسرا پھر اس بات کی بھی صراحت کی گئی ہے کہ رمضانس کیا یہ فضیلت کہ اس میں روزے رکھے جائیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماؤن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ گو قرآن یہ ماہ سیامس یس زن اصلی فضیلت چھ، یا ماہ سیام کے روزے اس لیے فرض کیے گئے کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
कुरान करीम को नाजिल किया है। यानी अल्लाह तबारक व तआला हन माह सियामस अवै फजीलत अता करमस तिकाज अल्लाह तबारक व तआला हन कोर रमजानस मजी माह सियामस मजी कुरान पाक नाजिल। बल्कि मुस्नद अहमदस मज रिवायत हजरत वासिला बिन अस्की रजी अल्लाह ताला अन्हु च रिवायत करन कि रसूलुल्लाह के फरमान कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तमाम आसमानी किताबें यमजन ये रमज़ान में ही नाजिल हुई है। बल्कि रवायतन मुझ आमुद कि सुहफ़ इब्राहिम यमजन यानी यमजन इब्राहिम अलैहिस्सलाम सहीफ आय दिन वो पहली रमज़ान को उनको दिए गए, यानी तुम्हारे गंडिकिस रमज़ान में नाजिल करना। तौरात ये 6 रमज़ान को नाजिल हुई और इसी तरह से इंजील ये 13 रमज़ान को नाजिल हुई और कुरान मजीद 24 रमज़ान को नाजिल हुआ। वो तमाम आसमानी किताब यम गम कथ मज नाजिल अथ माह सियामस में। सिर्फ एक फ़र्क है कि कुरान पाक इस बाकी आसमानी किताब ये यकबारगी में नाजिल हुए, यम गए सारे अके लट अंबिया अलैहिस्सलाम आयम हवाल कर। जिस तरह हमने पीछे भी देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए कोही तूरस पर क्या अन्य तौरात अन्य, वो एक ही बार उनको तौरात अता की गई। इसी तरह इंजील ज़बूर भी रिवायत में आता है। 20 रवायत में हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला रिवायत कर कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जो ज़बूर अता की गई वो भी माह सियाम में ही उनको अता की गई। अलबत्ता फर्क इतना है कि बाकी आसमानी किताब आए अकेले नाजिल करन, मगर ये जन कुरान मजीद ये थोड़ा थोड़ा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल की मुद्दत में नाजिल हुआ। अलबत्ता यतना वन शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, माह सियाम वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने इसका मतलब लिया है कि कुरान पाक आओ ये लौह महफूज पे आओ, ये आसमानी दुनिया पर यानी पहले आसमान पर लौह महफूज से आसमानी दुनिया पर ये एक ही बार माह सियाम में ही नाजिल हुआ। और वहां पर एक जगह है उसको कहते हैं बैतुल इज्जत, यानी बैतुल इज्जत मज आओ ये नाजिल करन। फिर वहां से हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम इसको थोड़ा थोड़ा करके अल्लाह के हुक्म से कहां पहुंचाते थे, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। और अमिच तायीद गसन। और दूसरा मतलब इसका लिया है मुफस्सिरीन ने कि सबसे पहले कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ कब, माह सियाम में। और इसकी तायीद कुरान से भी होती है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। और ये लैलतुल क़द्र कच ये तो माह सियाम में है। और यस पतिम रवायत ताफिज़ में कि कुरान को 24 रमजान को नाजिल किया गया। इसीलिए हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उनका ज्यादा यही मौक़िफ़ है कि लैलतुल क़द्र 24 रमजान। बहरहाल जो भी रात लैलतुल क़द्र की हो उसी में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को नाजिल किया है। गो कुरान नज़ूल इब्तिदा सद गई माह सियामस मज़ी और लौह महफूज से बैतुल इज्जत दुनियाई आसमानी दुनिया पर इसका नज़ूल भी एक ही बार किस में हुआ, माह सियाम। अल्लाह ताला फरमान कि इस माह सियाम को मैंने इसलिए शरफ बख्शा, यह कर मैं अवै मुंतखब रोजन खतर तिकाज अत मज कर मैं तमाम दुनियाहन हिंद यस जन सारे खुद बड़ नामत वो मैंने उनको इसी माह सियाम में अता की। तवै माह सियामस खास ताल्लुक कुरान पाक से। इसीलिए रिवायत में आता है कि हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम प्रेथ रातस माह सियामस मज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ कुरान का दौर करते थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कुरान। और आखिरी साल जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का साल था उस दिन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से के साथ मिलकर 2 बार कुरान का दौर किया। गो अवश कुरान पाकस खास मुनासबत कत माह सियाम से। और अवश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर कुरान का दौर करते थे हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ। और असलाफ उम्मत यमजन उनका भी ये मामूल रहा है कि वो कुरान की तिलावत का, कुरान को समझने का, कुरान पर गौर व फिक्र करने का ज्यादा एहतिमाम किस महीने में करते थे, माह सियाम के महीने में। तवश रवायत में पढ़न इमाम अबू हनीफा के मुतलिक आता है रहमतुल्लाह अलैह कि वो माह सियाम में कम से कम 60 खत्म कुरान करते थे। और एक रिवायत में इमाम शाफी के मुतलिक भी ये रिवायत है कि वो 61 कुरान मजीद का दौर करते थे, किस में, माह सियाम में। यूत ओस असलाफन शगुफ कत
अथ माहे सियाम सहित। अच्छा, अयाम मौदूदात की तफसीर हो गई कि अयाम मौदूदात कौन छ, ये माही सियाम के ये 30 रोजे हैं या 29 रोजे हैं। अच्छा, दूसरी बात याद रखिए, शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमजान वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया। वह वुश्त गो अल्लाह तबारक व तआला ने जो तमाम फजाइल इस माह सियाम को बख्शे हैं, ये असली कम सब कि अल्लाह तबारक व तआला को अतमुज कुरान पाक नाजिल। इसीलिए तमाम महीनों का सरदार रमजान, और जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको नाजिल किया ताता वन लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, गो सारे रातन ही सरदार लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से भी बेहतर। अच्छा, जिस जात ने इसको भेजा वो है रब्बुल आलमीन, जिस जात पर इसको नाजिल किया गया सुच सारवियो लुको मुझ सारवियो मखलूको मुझ अशरफ यानी सैयदुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो कुरान पाक अजमत क्या भेजने वाला युजन अहकमुल हाकिमीन, और जिस रात में इसको भेजा गया खैरुम मिन अल्फि शहर, जिस महीने में इसको भेजा गया वो सबसे अफजल महीना, जिस जगह पर इसको भेजा गया उसे कहा गया उम्मुल कुरा, यानी मक्का मुअज़्ज़मा को गोल्डन कुरान पाक नाजिल, तो उसके लिए कुरान ने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया, उम्मुल कुरा, तमाम युजन शहरों की माँ, शहरन हिज मौज उम्मुल कुरा मक्का, और इसी मक्का मुअज़्ज़मा को कहा गया बलदिल अमीन। ये किसकी वजह से है, कुरान पाक की वजह से। इथे पठनस यमे जातस पे नाजिल गो सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिस उम्मत जिसने ये इसको लाया सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिस उम्मत को ये दिया गया उसे कहा गया वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, और उसे कहा गया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, गो सारे खोत बेहतरीन युजन सारे खोत बेहतरीन यम ति वास्ता आय तुम केम जरिए, उनका ताल्लुक किसके साथ है, गो कुरान यस ताल्लुक थो, उसने उस चीज को क्या बना दिया, उसने उसको सरदार या सैयद बना दिया। खाने मक्का मुअज़्ज़मा की शरफ कुरान की वजह से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुल अंबिया सैयदुल अंबिया कुरान की वजह से, सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम क्योंकि कुरान को लाने वाले हैं। इसी तरह ये रमजान मुबारक की फजीलत कुरान की वजह से, लैलतुल क़द्र की फजीलत कुरान की वजह से, इस उम्मत की फजीलत और अफजलियत किसकी वजह से, कुरान की वजह से। तवै हदीस मज आमद फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो जिस शख्स को अल्लाह ने कुरान की नियामत बख्शी हो, यमिस इंसानस अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की नियामत आसे दिन, और वो अपने आप को या वो इससे युजन सास पर दुनिया के बाकी नियामतों हिंद तमाह करन, या वो अपने आप को समझता होगा कमतर, मेरा सच अल्लाह तबारक व तआला किहन थी, या इस नियामत को वो कमतर समझता हो, तो उसने इस नियामत की बेकदरी की। रसूलुल्लाह फरमो के एम नियामत बेकदरी। अच्छा, अब देखिए कुरान इतनी अजीम नियामत, अत युजन अनन वोल सुति बनो अत क्या सैयदुल मलाइका, और जिस जगह वो भी उम्मुल कुरा, जिस रात लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, तो इस उम्मत को दिया गया खैरी उम्मत बना दिया इसने इस उम्मत को। वो आज अगर इस व्यसन से सरबुलंदी हासिल कर, आज अगर हम इज्जतें और रिफतें हासिल करना चाहते हैं तो उसकी एक ही युजन अकई रास्ता है उसका कि हम अपना ताल्लुक किसके साथ जोड़े, हम अपना ताल्लुक कुरान मजीद के साथ। मगर बदकिस्मती छ आज उम्मत ने इसके साथ, इस कुरान के साथ अपना रिश्ता और कुरान के साथ अपना ताल्लुक कमजोर किया हुआ है। आज कमजोर ताल्लुक, हत्ता कि अगर हम चाहते हैं मामूली आज हम बागात पर पे सोरी पूंजी पन, सोरी मता पन, सोरी वक्त पन सरफ कर, हम कैरियर बनाने के लिए अपना सारा कुछ दाव पर लगाते हैं, मगर कभी हमें यह तौफीक हासिल नहीं होती है, कभी हमें यह फुर्सत नहीं मिलती है कि हम नाज़िरा कुरान ही रोज पढ़ते हैं। अच्छा यू तौफीक अल्लाह ताला, तो ये तो उस कुदरत, ये तो हदीस के मुताबिक ये इस नियामत की नाकदरी है, और ये कोई नियामत नाकदरी गसन च बहरहाल अल्लाह ताला फरमान इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो उनके लिए अल्लाह का अज़ाब भी शदीद होता है। अल्लाह ताला फरमान शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया, हुदल लिन्नास,
अब अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान की सिफात बयान करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने यतन कुरान पाक की सिफत बयान करमत। एक फरमाया हुदल लिन्नास, अख ये तमाम इंसानियत खातिर हिदायत। अब पहले रुकू में इस ये सूरह बकरा पढ़े गॉडनिक रुकूस में हुदल लिल मुत्तकीन, तता वन यह हसा मुत्तकीन खातिर हिदायत, लेकिन यहाँ कुरान का तारुफ करा गया हुदल लिन्नास। बज़ाहिर बासनात कंट्राडिक्शन, मगर असल में यह कंट्राडिक्शन नहीं है, तिकाज तत्ति वयों में हिदायत के अलग अलग दर्जे हैं। आपको हिदायत इल्मी, ब्याको हिदायत अमली। तो हिदायत दोनों के लिए यह है। आम हिदायत ये आम इंसानों के लिए है, यानी अगर कोई हिदायत का मुतलाशी है तो ये काफिर को भी हिदायत का रास्ता दिखाता है, मुसलमान को भी। लेकिन इस हिदायत से फायदा कौन उठाएगा? जो मुत्तकी होगा। बहरहाल रास्ता बताने के हद तक, हिदायत के हद तक ये तमाम लोगों के लिए हिदायत है। तवे अल्लाह ताला फरमान हुदल लिन्नास, कुरान पाक अख वसफा बयान करन, ये तमाम इंसानियत खातिर हिदायत। हिदायत हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा, और इसकी हिदायत कैसी है? इसकी ये जो हिदायत है ये बय्यिनात मिनल हुदा, ये सिर्फ हिदायत वजाहत, ये हिदायत सिर्फ निशानदेही योतन कर के, बल्कि हिदायत पर ये वाज़ेह दलाइल भी पेश करता है। यानी अब कुरान पाकस में हिदायत योतन हावन आमद के रास्ता ही सिर्फ नहीं बताया गया, बल्कि इस रास्ते पर चलने के लिए वाज़ेह दलाइल भी बयान किए गए हैं। वल फुरकान, और दईम सिफत कुरान पाकस ये क्या है? वल फुरकान। फुरकान माने फर्क करने वाली। कुरान पाक को अख नाव फुरकान ते, फुरकान माने हक और बातिल के बीच में फर्क करने वाली। असल में उलमा लिखते हैं कि कुरान पाक अकिस इंसानस फुरकान अता करन, यानी यह असल में इंसान में यह तमीज पैदा करती है कि हक क्या है और बातिल क्या है। यह तिस हिज मिसाल, एक इंसान अंधेरे में चल रहा है, आख इंसान अंगटिस पकन, अगर इसके पास रोशनी का कोई इंतजाम नहीं होगा तो ये मुख्तलिफ किस्म की ठोकरें खाएगा, अमिस लगे मुख्तलिफ खून, अमिस गाशिक इंतजाम। यही मिसाल एक इंसान की इस दुनिया में है। अगर ये कुरान की हिदायत के बगैर जिंदगी बसर करेगा तो ये मुख्तलिफ ठोकरें खाएगा। ये शिर्क और ज़लालती के साथ अंधेरे में ये सिर्फ ठोकरें खाता रहेगा। अगर ये जिंदगी में वाकई रोशनी चाहता है, ये व्यसन पानी जिंदगी ठोकरों निश बचाव, तो उसके लिए उसको किससे रोशनी हासिल करनी होगी? कुरान से रोशनी हासिल करनी होगी। आज बेहतरीन मिसाल एक आलिमन दिसमस, दपन कुरान की मिसाल आप समझ लीजिए। यह मानते तह यह पर ड्राइविंग कर इंसान ड्राइविंग जब करता है तो उसके सामने ट्रैफिक लाइट्स होती हैं। ट्रैफिक लाइट साथ रेड लाइट गसन तमिक मतलब क्या गो? तो ये रोकता है अपनी गाड़ी को। ये साथ ग्रीन लाइट आसन यह चलावन, तो ये कुरान मान लीजिए ये वही ट्रैफिक लाइट्स है। यह वातनावन अकिस इंसानस अकिस दुनिया मज साथ जिंदगी बसर कर इंसान ये मुख्तलिफ दोराहों से गुजरता है। अमिस मुख्तलिफ दोराहे युवन, कुन साथ अमिस जिंदगी में युवन, इसको फैसला करना होता है कि मेशा याथ वत पकुन के मेशे याथ वत पकुन, तो उस वक्त इसको फर्क करके कौन देगा? इसको रुजू करना होगा किसकी तरफ? कुरान की तरफ। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसको अपने औलाद के लिए निकाह का पैगाम आता है, या मिशी निकाह छाड़ू। अब ये चाहे तो दुनिया भी इसके जरिए से हासिल और वसूल कर सकता है, ये चाहे तो इसके जरिए अपनी आखिरत भी संवार सकता है। वही क्या करिए चूज, ये दुनिया अपने लिए चूज करेगा या आखिरत? तो ये फुरकान, ये फर्क करके इसको कौन देगा? ये दी अमिस कुरान मजीद। इसीलिए कहा गया कुरान एक तो हुदल लिन्नास है, ये लोगों के लिए हिदायत है। खाली हिदायत ही नहीं है, बल्कि इसमें हिदायत की वाज़ेह दलाइल भी मौजूद हैं। वल फुरकान, और ये हक और बातिल के बीच में तमीज भी करके देती है। ये फर्क कर दिवन। अल्लाह ताला फरमान फमन शहीद मिनकुम शहर फल यसुम हो। बस पिछले आयत में हमने पढ़ा था कि वहां एक खास रिलैक्सेशन आमज अरबिकन लुकन दिन कि अगर तय वेस्यू रोज था आप रोजा रख सकते हो, लेकिन अगर कोई फिदिया देना चाहे तो इसके बदले क्या दे सकता है? फिदिया। लेकिन वो रिलैक्सेशन एक मखसूस वक्त के लिए थी। अल्लाह ताला फरमान फमन शहीद मिनकुम शहर फल यसुम, बस जो कोई आप में से इस महीने को पाए, फल यसुम हो, तो वो क्या करे? वो इस महीने के रोजे रखे। यानी यस पाथ को रिलैक्सेशन खत्म कर, अब फिदिया नहीं चलेगा, बल्कि अब जो भी रमजान को इस्तिताअत में पाएगा, रोजों की इस्तिताअत में, यानी उसका ना तो मरीज आसन ना इस्तिताअत, जब वो रमजान को पाएगा उसके लिए अब रोजे ही रखना लाजिम, अब फिदिया नहीं चलेगा। वो ये आयत यस पतमिस हुक्मस क्या करन
मनसूख युजन फिदियु गणित ओस। इसीलिए उलमा ने मुफस्सिरीन च वनन ये आयत लगभग 1 साल के बाद नाजिल हुई है। गणिक हुक्म ओस गणिकिस वरियस खातिर। अब इसके बाद आया फमन शहीदा मिनकुम शहर, पास जो कोई इस महीने को आप पाए तो फल यसुम हो, उसको चाहिए कि इसके रोजे रखे। बहरहाल फमन शहीदा युजन छ यानी जो कोई रमजान के रोजों को, ये रमजान के चांद को पाए। अमिक मतलब क्या गो? मुफस्सिरीन ने कहा है इसकी 2-3 शरतें हैं। गॉडनिक शरत या तो ये खुद रमजान के चांद को देखे, तेल लाजिम तेल क्या थाउन पर, तो इसका मतलब है कि इसने रमजान को पाया, अमिश रमजान रोज, या किसी मोतबर जरिए के जरिए या मोतबर आदमी के जरिए अगर इसको इतला मिलती है कि चांद नजर आ गया तो इसका मतलब है अब यह रमजान इसने पाया। अमिश पे क्या करन? रोजे रखने हैं। अलबत्ता अगर उबर की वजह से या मतला उबर आलूद तो किसी भी जरिए से चांद का तायुन नहीं हो सका। इस पर हिलाल कमेटी आज तुम मतला उबर आलू था, मैंने नजर आज क्या चांद नजर नहीं आया, तो इस सूरत में जो अगले वाला दिन है उसको कहते हैं यौम शक। यौम शक को शक वाला दिन, यानी इसमें एहतिमाल है कि ये रमजान का भी दिन हो सकता है, एहतिमाल है कि रमजान का दिन नहीं हो, ये शाबान का ही दिन हो। इसलिए इसके रोजे के बारे में क्या हुक्म है? बहरहाल उलमा से लेखन हदीस से भी पता चलता है कि इस दिन का रोजा वाजिब नहीं है। एमदूग रोज वाजिब, बल्कि मुफस्सिरीन ने लिखा है, फुकहा से लिखमत, इस दिन का रोजा रखना मकरूह है। एमदूग रोज थाउन क्या? क्योंकि ये तो हो गया अपनी तरफ से किसी चीज को वाजिब करना, या इसका मतलब है कि हमने शाबान को गड़बड़ कर दिया किसके साथ? रमजान के साथ। इसलिए एमदूग दो की रोज थाउन। अलबत्ता अगर बाद में पता चले कि वो वाकई पहला दिन था रमजान का तो फिर उसकी कजा वाजिब है, तमें कजा कारण क्या वाजिब। नंबर 8 ये तो हो गया फमन शहीद, जो कोई रमजान का रोजा पाए। इसी तरह से अगर कह शख्स गसन, क्योंकि ये तो चांद पर एहतिमाल है, अख शख्स ये सुधराव यथनस, मिसाल के तौर पर वो आज यहाँ रहता है, इसने यहाँ से 28 दिन या 27 दिन मुकम्मल किए, युवा सऊदी अरब, वहां पर चांद नजर आ गया, मगर मिसाल कुल 8 दो। अब वहां पर क्योंकि इसने किसका चांद देखा? शवाल का चांद देखा। अब इसके लिए कौन सा महीना खत्म हो गया? रमजान का महीना। तो ये अब उस दिन 28 ही रोजे पूरे करेगा। अब दूसरे दिन क्या रखेगा वो? यहाँ इस खतर ईद, मगर इसको एक दिन की कजा फिर बाद में करनी होगी। सही इस खतर कजा। अच्छा, अल्लाह ताला फरमान फमन शहीदा मिनकुम शहर फल यसुम, पास जो कोई आप में से इस महीने को पाए तो वो इसके रोजे रखे। वो आयतन हुक्म आमुद फर्जियत, यानी अब वो फिदिये का मामला खत्म हो गया। अच्छा, वन गो लुकन आज गुमान गुमुत कि युस जन फिदियुक मामला या कजाहुक मामला वो तो अब साकित हो गया। क्या मरीजन क्या हालत? तो इसलिए अल्लाह ने फिर से वो हुक्म रिपीट किया, वमन काना मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतु मिन अय्यामिन उखर, पास जो कोई आप में से मरीज हो या सफर की हालत में हो तो वो इनकी कजा दूसरे दिनों में कर। ये में तफसील वो कि मरीज कुस उसमें तो वो माए बहनें भी आती हैं, आप में दायमी मरीज तुम बन दायमी मरीज कह सो मरीज ये रमजान मज बीमार गो, तो इनके लिए ये जो रिलैक्सेशन है साय अल्लाह ताला की तरफ बाकी था। अच्छा, दूसरी बात जो मुझे भूल गई, इसको ये फमन शहीदा मिनकुम शहर, जो कोई इस महीने को पाए। महीने के पाने का मतलब क्या है? यानी रोज के पे फर्ज, ये याद रखिए, रोजे फर्ज होते हैं, इसके लिए कुछ शराइत हैं। पहली शरत है मुसलमान होना, गॉडनी शरत से क्या आसन काफिर पे रोज। दूसरा शरत है बालिग होना, ये आसन क्या बालिग, नाबालिग पर रोजे फर्ज। तीसरी शरत है आकिल होना, यानी ये मजनून या देवाना आसन, क्योंकि उस पर भी शरीयत के ये जो अहकाम है उनका इतलाक नहीं होता है। और तीसरा आगे मुसलमान बालिग भी आकिल, मुसाफिर नहीं होना चाहिए, ठीक है, मुसाफिर रिलैक्सेशन। और अगर मरीज तमिस पे तुथ मरीज वाकई रिलैक्सेशन में उस पर भी रमजान के रोजे कुछ देर के लिए फर्ज, फिर वो बाद में इनकी कजा। इसमें से एक मसला एक निकल ब्याक मसला, अगर कोई शख्स रमजान के दौरान बालिग हो जाए, यानी बालिग होने की जो अलामतें हैं, मिसाल के तौर पर एहतिलाम हो जाए, वो तो बालिग होने की शरत है, या उम्र पाए यजन उम्र 14 वरी या 13 वरी फुकहा लिशमस, अगर वो उम्र कंप्लीट करता है दौरान रमजान, तो उस पर फिर वहां से रमजान के रोजे क्या हो जाते हैं? फर्ज हो जाए, पिछले रोजों की उस पर काजा नहीं है। इसी तरह से अगर कोई रमजान के बीच में मुसलमान होता है, काफिराशी तेम्पोड़ कलम 10वें रमजान उसको पिछले दिनों की जो ये क्या रोजे हैं
उनकी जन कज़ा या तुम तमिस पर वाजिब या फर्ज ही नहीं थे तो वो आगे से शुरू करेगा। अलबत्ता अगर कोई मजनून होगा, मजनून को यमिस जन मिर्गी या तुस मजनून जन देवान या फातिर ओस, मगर करामत के जरिए या अल्लाह का करना कि सुबह ठीक रमजान दौरान अब उसको पिछले दिनों की भी कज़ा करनी होगी। तमिस कमन दोहन हिंज पचमें दोहन हिंज कज़ा, क्योंकि अब उस पर शरीयत के अहकाम का इतला, मगर बशर्ते कि वो ये बालिग हो। अगर से बालिग, हता कि कुछ उलमा ने लिखा है कि जितने साल वो बालिग रहा इस मजनून होने की हालत में, ठीक होने के बाद उसको उन तमाम महीनों की या तमाम सालों की कज़ा करनी होगी। बहरहाल यम अत मज अहकाम। अम पे आखिरी टुकड़े में आयत अल्लाह ताला फरमान युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए आसानी चाहता है, वो आपके लिए तंगी नहीं चाहता। यानी आसानी किस बात में, यानी खुदा तूत जालिम नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कि वो आप पर हुक्म लगाए कि मरीज हो या कुछ मुसाफिर हो, आपको रोजे रखने ही रखने, तो दाड़ नहीं था वो रोज। अल्लाह ताला फरमान नहीं, बल्कि मैंने आपके लिए ये छूट रखी है क्योंकि अल्लाह आप पर आसानी चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला तुहंद खतर आसानी व्यसन, सुन तह व्यसन मशक्कत मज और तंगी मज त्रावन कह, बल्कि हदीस मज तह आमुत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि बशिरू वला तुनफ्फिरू, या आओ सहाब सबन वन बशिरू वला तुनफ्फिरू, यानी यम साथ लुकन इस्लाम दावत दिवन बशिरू तुमन खुशखबरी बोजन, वला तुनफ्फिरू इस्लाम नफरत करनावन। यानी इसका मतलब क्या है, इस्लामी नफरत यानी तीर शदीद अहकाम तीर सख्ती कर यह पे खुशक दीन ब्रो कुन कर पेश। रसूलुल्लाह अमि मना, बल्कि यीचा रिलैक्सेशन इस्लाम के हदूदन मज हको तमन दित वो देनी है। बशिरू वला तुनफ्फिरू यस्सिरू वला तुअस्सिरू, हाँ उनके लिए आसानियां पैदा करो, उनको सख्ती में मत डालो, यानी यमन तक इस्लामी दावत दियो। बल्कि अकिस हदीस मज रसूलुल्लाह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करन, और ये मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है, यानी मुस्लिम शरीफ में भी है और बुखारी शरीफ में भी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करन फरमो कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्रोट कई दोन चीजन मज आसे कुछ चीजुक इंतखाब करुन, यानी दो अमाल में से या दो मामलात में से इंतखाब करना होता, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसान वाले अमल को इख्तियार करते, मगर बशर्ते कि वो हलाल और शरीयत में उसकी गुंजाइश, यानी रसूलुल्लाह समझ हमेशा कारण कत था या जन आसान कत आसान। और एक रिवायत में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अख सहाबी अख हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर, अख हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर यु जन हज़रत उमर फारूक से नेचो, ब्याक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर, अमर जबर सत किताबन मज लिखित आइन मीम रिया वाव, अत पढ़ अक्सर अमरो, अमरो कह यह अमर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर, इस पर जबर पढ़ी जाती है। तो ये एक सहाबी थे। बहरहाल यमो यम साथ निकाह कोर यह खानदार या एक साथ रसूलुल्लाह से शिकायत थी, तुमने या रसूलुल्लाह अजीब मामला मेरे खानदार सुन, आज तक मेरे पास कभी आया ही नहीं, ना मे सत कर ना मे सज़वाजी ताल्लुकात कायम कर, तो उसने तो मतलब अजीब मामला, और दिन में रोजे रखता है, दोहर क्या था वन रोज, अजीब मामला। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाकर लाया, शिकायत ना गम उनको बुलाया, दो अब्दुल्ला क्या मामला है आपका, चुक रात इबादत में मशगूल और दोहर कत मज। फिर रसूलुल्लाह ने उनको तंबीह की कि अल्लाह तबारक व तआला को ऐसा अमल पसंद, बल्कि रसूलुल्लाह ने फरमो कि अल्लाह तबारक व तआला जो शख्स दीन के साथ मुकाबला करेगा, युस का कर मुकाबला दीन के अहकाम से, तो अल्लाह तबारक व तआला और दीन उसको हरा कर रहेगा। यानी इस्लाम इंसान के बस में यह नहीं है कि इंसान है कि सारी मुतालबात दीन या यीता मशक्कत में त्राय इंसान, बल्कि अकिस हदीस में फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करन, फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह तबारक व तआला को वो अमल पसंद है जो मुस्तकिल किया जाए, इस कंटिन्यूअसली करने की, हालांकि अगर वो मिकदार में कम ही हो, अगर से मिकदार में क्या है, यानी अल्लाह को ये पसंद नहीं है कुन दो वथो सुले 3 बजे पढ़ो तहज्जुद 20 रकअत, मगर पता आसन रेतस पढ़न कि नहीं, और कुन दा आसन तिलावत कलाम पाक करन 3 पार इफे मसान करन, मगर बाकी दिनों में 1 रुकू भी, ऐसा अमल अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला से सो अमल पसंद युस कम आस मगर मुस्तकिल मिजाज। इससे पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियादी उम्मत दिवन तालीम कि यम गस मुस्तकिल मिजाज आसन, और ये आसानियां अपने लिए पैदा करने चाहिए। अवै अल्लाह ताला फरमान युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए आसानी चाहता है, ये आपको तंगी में डालना नहीं चाहता है। और वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह, अच्छा इस युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा यजन छ अत मुतलिक छ वारियाह आयात कुरान पाकस मज, यत मज अल्लाह ताला फरमावन छ युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफा,
अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि वह आपसे आपका बोझ हल्का करे। वह खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, और हमने इंसान को इंतहाई कमजोर पैदा किया है। यानी अल्लाह ताला से पता कि ये कुता बोर है कि, इसलिए अल्लाह ताला फरमाता मैंने आपके इस बोझ को हल्का किया। और ला इक्राहा फिद्दीन, ये इसकी मुख्तलिफ तफासिर लोगों ने की है। एक तो दीन कबूल करने के मामले में भी जबरदस्ती, और एक तफसीर इसकी यह भी की है ला इक्राहा फिद्दीन, यानी दीन के अहकाम में कोई जबरदस्ती, यानी इंसान गश्ने पनुन पान जबरदस्ती करनाउन, पानस पे तुम चीज मुसल्लत के यमन हिज तमें सख्त आसे। हाँ, फराइज के मामले में ये गुंजाइश नहीं है। फराइज मुतलिक जिनका हमारी पाका करना मैं सख्त फर्ज पढ़ फर्ज के, फर्ज के मामले में ये गुंजाइश, मैं नवाफिल की बात अवै रसूलुल्लाह ने मना किया है साइमुद्दहर रहने से। साइमुद्दहर क्या गो, इस कंटिन्यूअसली वुहर वरियस रोज क्या क्या वन रोज। और एक सहाबी के बारे में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थावन सौमी विसाल, सौमी विसाल उस सौम को कहते हैं जिसमें इफ्तार हो ही नहीं। यानी रसूलुल्लाह थावन रोज पता इफ्तार कर पता दयम दो थावन कत सहाबा ने इसको देखा, चंद सहाबा ने तो करो ये, तो रसूलुल्लाह को जब पता चला इसका तो उन्हें मना किया। और मना को रखिए तिकाज फरमो नबी क्या तो मकाम अलग होता है और नबी कुछ बातों में खास होता है, ये तो सुन्नत इत्तिबा। इसलिए रसूलुल्लाह ने इन बातों से मुसलमानों को और अपनी उम्मत को मना किया कि यम गस एतदाल वत अपनावें। और पीछे भी हमने पढ़ा है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसत, हमने आपको मोतदिल उम्मत बताया। आत्म से मोतदिलस में करे में तम साथ तशरी कि तमाम मोतदिल छी ये उम्मत अहकाम के मामलन में दे। इसलिए अहकाम के मामले में भी मुसलमानों को एतदाल से ही काम लेना चाहिए। अल्लाह ताला फरमान युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल इस्र, इसलिए अल्लाह ताला फरमान वलितुकमिलुल इद्दता, इसलिए आप इन दिनों को मुकम्मल करें। यानी ये तादाद करी क्या पुल इद्दता क्या गो, इद्दत कहते हैं किसी मुद्दत को, ये मुद्दत मुजदाम। जिस तरह इद्दत का इतलाक कहां पर होता है, ये कैसे अल्लाह ताला बचे कैसे खातून खानदार मरन या तलाक गसन, फिर उसको क्या मुकम्मल करें इद्दत। ये इद्दत किसे निकला है इसमें मुद्दत, वहां तो वो मुतय्यन मुद्दत है 4 या 10 क्या बहरहाल उसकी तरफ हमें नहीं जाना है। इद्दत का मतलब है एक मुतय्यन मुद्दत। तो अल्लाह ताला फरमाता है वलितुकमिलुल इद्दता, हमने आपके लिए आसानी इसलिए बनाई ताकि आप इन दिनों को मुकम्मल करो। यानी इशारा इसकी तरफ है कि जो सेहत की हालत में हो, जो मुसाफिर ना हो, वो तो कंटिन्यूअसली रमजान में ही ये मुद्दत मुकम्मल करेगा, ये दिन मुकम्मल। अलबत्ता यमिस वह उज़ुर ओस, यमिस शरीयतन इजाजत, वो बाद के दिनों में इनकी कज़ा करके इन दिनों को मुकम्मल करेगा। अल्लाह ताला फरमान वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और भी क्या करूं वलितुकब्बिरुल्लाह, ताकि आप अल्लाह की बड़ाई बयान करो। भी करियो अल्लाह तबारक व तआला से किब्रियाई बयान, किस बारे में अला मा हदाकुम, इसलिए या इस बात पर कि अल्लाह ने आपको इसकी हिदायत, किसकी हिदायत दी, केमिश हिदायत दी, रमजान के रोजों की, कुरान की नियामत की हिदायत, और इसी तरह से ये अहकाम बजा लाने की हिदायत। और इस पर भी अल्लाह की बड़ाई करो कि अल्लाह तबारक व तआला मशक्कत में किया, बल्कि उसने आपके लिए आसानियां बयान की। वलितुकब्बिरुल्लाह, और नेज अल्लाह ने तुमको हिदायत अता फरमाई, इस पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो। अल्लाह तबारक व तआला को न तो हिदायत कुरान को न माही सियामत को नेक अमाल को न, और अल्लाह ने आपके लिए आसानियां पैदा की, इस बात पर आप अल्लाह की बड़ाई बयान करो। ये अल्लाह की बड़ाई कैसे बयान करनी है, ये सिर्फ अल्लाह अकबर ज़बानी योतन पढ़न, हाँ जुबान से भी अल्लाह अकबर, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई का बयान करना है। मगर इस पर कुरान पाक में रसूलुल्लाह में हुक्म थे आमद वली रब्बिका फकब्बिर, यानी अपने रब की बड़ाई बयान। ये तो रसूलुल्लाह को इब्तिदाई हुक्म था, ज़बान से खुदा किबरियाई बयान करे। मगर असल में असली किबरियाई अल्लाह की बयान करनी है किस तरह से, अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने आमाल से और अपने वतीरे से। किबरियाई बयान और बातिल नजरियात को ठुकरा कर और बातिल को नीचा दिखाकर अल्लाह के अहकाम को और अल्लाह के दीन को गालिब करना, यह असल में अल्लाह की किबरियाई का असल में बोलबाला, और यह वो अल्लाह तबारक व तआला से किबरियाई बयान। और अकिस तफसीर में आमद, बल्कि जो मुतक़द्दिमीन सान प्रान मुफस्सिर, उन्होंने यहाँ पर मुराद ली है वलितुकब्बिरुल्लाह, इससे मुराद है कि जब आप रोजे मुकम्मल करो, रोज मुकम्मल करन, यानी माह सियाम, फिर क्या सा दिन आता है, फिर तो ईद का दिन, खुशी का दिन होता है,
दपन अल्लाह ताला वली तुकब्बिरुल्लाह, उस दिन अल्लाह की बड़ाई बयान। और रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दो गसन वो यहाँ से भी तकबीर पढ़ते हुए जाते थे, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल, और वहां से रास्ता बदल कर फिर से यही तकबीर पढ़ते थे, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल, यही हो गया वली तुकब्बिरुल्लाह। और फिर इन रोज़ों को मुकम्मल करने के बाद अल्लाह की तकबीर बयान करो नमाज के जरिए से, और तकबीर इन तकबीरात उनका विरद करने से। वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून, और उसका शुक्र अदा करो। और भी अल्लाह तबारक व तआला से क्या शुक्र अदा, अमा क्या पे करो शुक्र अदा, किस बात पर अल्लाह की बड़ाई बयान करें। और उसका तो जिक्र आ गया कि अल्लाह तबारक व तआला को न तो हिदायत कमियुक माई सियामुक, अल्लाह तबारक व तआला कर तुहिंद खतर आसानी, अल्लाह तबारक व तआला कर तुहिंद खतर नियामत अता। और यहाँ आया वाला व लअल्लकुम तशकुरून, और अल्लाह का शुक्र बयान करो किस पर, जो अजीम नियामत अल्लाह तबारक व तआला ने इस रमजान में लोगों को अता, खास तौर पर मुसलमानों को अता की, सुकुश कुरान पाक। और आगे सूरह यूनुस में भी हम पढ़ेंगे फल यफरहू, रसूलुल्लाह हुक्म करना कि इस कुरान के बारे में फल यफरहू, इस पर खुशियां मनाओ। कुरान नाजिल गसनस पे, कुरान दिनस पे करियो तो क्या खुशी। तो यहाँ पर भी आया कि अल्लाह की इस बड़ी नियामत पर, अल्लाह की इस दी हुई नियामत पर आप शुक्र अदा करो। और शुक्र क्या है, शुक्र वन में ओतर तय, शुक्र जबान सती योतन के, बल्कि शुक्र असल में है कि अल्लाह के अहकाम जो इस कुरान में नाजिल हुए हैं उनके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर, यह वो असली शुक्र करुन। अल्लाह ताला फरमान व लअल्लकुम तशकुरून, ताकि आप शुक्र करो अल्लाह का, यानी यमजन अल्लाह तबारक व तआला ने अमिश हिदायत करो, ये नियामत जिसनो आप पर करियो अल्लाह तबारक व तआला सुन शुक्र। बहरहाल उम्मत मुस्लिमा यजन छ, इसकी मिसाल एक आलिम ने बहुत ही बेहतरीन दी है। और तथ पे तरते फिक्र कि वाकई अमिक शुक्र करन क्या न। बहरहाल तुम वन हसरत तमिस मुसाफिरस पे जो किसी सहरा में भटक रहा हो, हसरत तमिस मुसाफिरस पे कुन सहरास मज भटकन त्रेश कर, यानी जेव क्या दाम फटित त्रेश से, मगर इस बेखबर को पता नहीं कि मेरे जेब में या मेरे इस सामान के ठेले में पानी की एक मशकीजा भी है। अमिस मगर पता कि मैं सोच क्या। अब बताओ इससे बेबदनसीब या अमिस खुद हसरत क्या कंस मुसाफिरस पे त्रेश तिश कर, त्रेश तिश मगर पता कहीं कि मैं त्रेश सत। बिल्कुल यही मिसाल आज उम्मत मुस्लिमा की है। इनके पास वो आब हयात है जो उनको जिंदा करने के लिए भी और पूरी दुनिया को भी जिंदा कर सकता है, मगर बदकिस्मती इन मुसलमानों की तमसी मुसाफिर सज बाश, जिसके पास ये आब हयात है, सह हे त्रेश दुनिया से चाहे पानस तक जिंद कर, मगर हमें यह आब हयात अपने थैले में या अपने जेबू में भूल गई है, हम इसको निकालना भूल गए हैं। बहरहाल जरूरत है अमि कथ कि भी वापस रुजू कर कुरान पाकस कुन, और भी रुजू कर अल्लाह तबारक व तआला सद इल्हामी किताब कुन। फिर आप देखोगे कि हमारी जिंदगियां कैसे फिर से संवरेंगी। और इंशाअल्लाह रहमान सो दोह दूर यम सात जन मुसलमान रुजू कर कुरान पाकस कुन, तो वो दिन दूर नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला फिर से मुसलमानों को इस दुनिया में गालिब और फिर से इस दुनिया में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम होगा। बहरहाल रब्बुल आलमीन मंगो दुआ कि सह बनाइन अस अमि निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करने वाल मज हिस्स लगाइन सोन ती कर अल्लाह तबारक व तआला अस तौफीक इनायत कि करो ज़्यादा खो ज़्यादा कुरान पाक खिदमत। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।